Hello students, I am Dr. Lalita from Hazri Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the maths new chapter, that is comparing quantities 1. Okay, in this we are going to discuss the percentage, how we calculate the percentage, how a number is converted into percentage, and how a percentage is converted into a number. Suppose if I am saying percentage means, percentage का मतलब क्या होता है, per hundredth, per 100. If I say that somebody is paying tax as 30% tax, 30% tax means he will pay ₹30 out of ₹100. 100 रुपीज में से वो 30 रुपीज जो है वो एज अ टैक्स पे कर रहा है. दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट ही विल पे द 30% टैक्स. वो क्या पे कर रहा है, 30% टैक्स जो है वो पे कर रहा है. परसेंटेज का जो सिंबल होता है दैट इज अ tilted line and the two dots over there. This is the symbol of the percentage. Now the percentage is expressed as a fraction. How a percentage is expressed as a fraction? Like if I am saying that 30, convert the 35% as a fraction. 35% को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 35 divide the percentage, whatever the percentage is given to you, that percentage divide by 100. ठीक है, 35 divided by 100. Now this is in 5 table it goes to 7, it is gone to 70. So 35% means 7 out of 20. This is the equivalent fraction form of 35%. ठीक है. Similarly, if I talk some percentage differently, that is 42%. How this 42% is converted into the fraction? Now this 42% means 42 divided by 100 again. So this comes out to be 21. This comes out to be 50. Now 42% means 21 divided by 50. This is the 21 by 50 is the equivalent form of the percentage 42%. ठीक है, this is how you can convert the percentage into a fraction. For इससे क्या कंक्लूजन निकला कि परसेंटेज को जब हमें फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज जो दे रखी है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे. सो जो भी उसको फ्रैक्शन जो है उसको हमेशा हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिनिमम फ्रैक्शन के फॉर्म में है. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट. तो ये आएगा 7/20. अब इससे ज्यादा 7/20 जो है वो मेरा कट नहीं हो रहा. सो 7/20 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 35%. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ what if the fraction is given and you have to find out the percentage of that? Means converting percentage fraction को convert करना है आपको fraction to a percent. Like if I say 4/5, first question is convert 4/5 फ्रैक्शन इंटू अ परसेंटेज. इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है. सो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 4/5 दिस मल्टीप्लाई बाय 100. जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 20 एंड ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस कम्स आउट टू बी 80%. दिस इज द 80%. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट द परसेंटेज साइन. आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस फ्रैक्शन को, सो इट मीन्स दैट यू आर कन्वर्टिंग दैट फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, एंड आफ्टर दैट वट एवर द ऑन मल्टीप्लीकेशन वट एवर द वैल्यू इज कमिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द परसेंटेज साइन. लाइक वाइज इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 6/5. 6/5, convert this 6/5 into percentage. So again this is coming out to be 120. So means 6/5 fraction is equivalent to 120 percentage. ठीक है, this is how you can convert the fraction to a percentage. Now the next thing is how you are converting a decimal number
इनटू अ फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? सो डेसिमल नंबर, लेट डेसिमल टू द डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमें किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। ठीक है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। एंड दैट फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। उसके बाद उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज के अंदर। सो लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल। If the decimal number is given as 0.122, convert this number, decimal number, into a percentage. How you convert? So this number is this is equivalent to 0.122. If I remove this decimal sign, then I put 1000 over here, and this is the equivalent fraction form. Now this equivalent fraction form को अगर मैं convert करूंगी किसके अंदर? फ्रैक्शन परसेंटेज के अंदर। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100। सो दिस कम्स आउट टू बी 122 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज 12.2%। ठीक है, ये किसके इक्वल बन जाएगा? मेरा 12.2% के इक्वल। ये क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लाइक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। सपोज इफ द नंबर डेसिमल इज गिवन एज 0.3546, नाउ हाउ यू कन्वर्ट दिस decimal number into the fraction? Put this 0.3546, remove the decimal, put 4 zeros over here, and multiply this number by 100, and on this you get the answer is 35.46%. This is the step by step process. This is how you solve the question in your school curriculum. But if you want to solve this in your competitive exam, then directly multiply this decimal number by 100, you will get the same result. आपको क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होगा और आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल को परसेंटेज में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। एक नंबर जो आपको गिवन है उसकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? सपोज question is find 12% of rupees 1200. Now how you will find? 12% means 12 divided by 100, right? This is equal to 12%. Now 12% of rupees 1200 means 12% is represented as 1 to 12 divided by 100. Of means multiplication, and 1200 rupees 1200 cancel out the zeros. Now 12 multiplied by 12 is rupees 144 is the answer. 12% of 1200 is rupees 144. Now let us try one more question on that. Find find 13% of rupees 6500. Now this 13% means 13 divided by 100, and 13% of rupees 6500 means 13 divided by 100 multiply by 6500. Cancel out the zeros. 65 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 and multiplied with 13, you get the answer 1519, and this is 65,548 rupees 845 is the answer. ठीक है, this is the answer. Now
हमेशा जरूरी नहीं है कि परसेंटेज जो है वो आपको इसी इजी मेथड से कैलकुलेट करने को आए. नाउ द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज फाइंड if question is if question number 3 is if 23% of A is 46. ठीक है, वो क्या है 46 है. देन फाइंड A. हमें क्या करना है A को फाइंड करना है. अब नाउ 23% मीन्स 23 divided by 100. 23% of A means 23 divided by 100 multiply by A. ठीक है, is 46. So 23 divided by 100 multiply by A is equal to 46. Now solve this linear equation in one variable. A comes out to be 46 multiply by 100 divided by 23. 23 की टेबल में 46 2 पर, सो A is equal to 200. A क्या आ गया आपका 200 आ गया. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द पेपर, दैट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर इज लाइक 72% of, question number 4 is 72% of 25 students are good in maths. ठीक है, how many are not good in maths? मीन्स 25 स्टूडेंट्स के 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो गुड हैं मैथ्स में. हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने बच्चे जो ऐसे हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. तो 72% मीन्स 72 divided by 100. 72% of 25 is equal to 72 divided by 100 multiply by 25. 4. When 72 divided by 4 it comes out to be 18. ठीक है, तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में क्या हैं गुड हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ students not good in maths is equal to total students कितने थे 25 minus मैथ्स में अच्छे कितने हैं 18. so the answer comes out to be 7 students. This is how you can solve the questions. These type of questions are provided in your textbooks, so you can solve that. Now I will try few more questions. Convert 0.3% into the fraction and ratio. 0.3 फ्रैक्शन को परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर. कन्वर्ट 0.3% एज फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है एंड रेशो में भी कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो क्या करना है दिस 0.3 इज डिवाइडेड बाय 100 एज दिस इज द परसेंटेज 0.3%. 0.3% इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, यही होगा इसका 0.3% इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 100. अगर मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो रिमूव दिस डेसिमल एंड राइट इट एज हियर, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1000. दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्योंकि अब इससे ज्यादा ये कट भी नहीं हो सकता, तो
नहीं कर सकते। अब रेशो में लिखना है तो नीचे 3 जीरोज हैं, ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.0003। दिस इज द इक्विवेलेंट रेशो, ठीक है। 0.3 का ये आ जाएगा मेरे पास रेशो, ये डेसिमल फॉर्म, सॉरी दिस इज द डेसिमल फॉर्म। ये फ्रैक्शन फॉर्म है। रेशो फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो आई कैन राइट इट एज 3/1000। दिस इज द रेशो फॉर्म, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, रेशो फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन गिवन इज एक्सप्रेस कन्वर्ट 14/625 14/625 as percentage, as into percentage, into percentage, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाय 625 को आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो 14 डिवाइडेड बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 625 जो है वो किस में आता है, 5 की टेबल में आता है, 25 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 25 की टेबल में ये भी आता है और 25 की टेबल में मेरे पास 100 भी आता है। तो 25 की टेबल में 100 कहाँ आएगा, 4 पर आएगा, एंड 25 की टेबल में 625 कहाँ पर आएगा, 2525, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर कट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। नाउ 14 multiplied by 4 is 56, this divided by 25, and when 56 is divided by 25 what will get, this is 2, 56, again put decimal, write 0 over here, this is 2, 50, 10 is left, again put 0, 0, 224, so percentage is 2.24%. This is how we can express the fraction into the percentage. हम क्या कर सकते हैं, fraction को percentage में express कर सकते हैं। Now the next question is convert 7/25 into the fraction. 7/25 को fraction में convert करना है, ठीक है। 7/25, so this 7 divided by 25 multiply by 100, this comes out to be 28%। ये कितना आ गया आपका, 28% आ गया। अगर कोई रेशो दे रखा है आपको, लाइक कन्वर्ट रेशो 11/80, 11:80 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में। हाउ यू विल कन्वर्ट दैट 11/80? नाउ फॉर दैट यू हैव टू राइट this 11:80 in the fraction form, that is 11 divided by 80, multiply by 100, 0 से 0 cancel, now this is at 4, this is at 5, so the answer comes out to be 55 divided by 4, that is 1, 15, 3, 12, 3, 55 divided by 4, 1, 4, 1, 15, 3, 12, this is 3, put 0 here and put decimal here, write 0 here, 7 4s are 28, and 2, again 0 here, 4 5s are 13.75%, ठीक है। 11:80 is expressed as 13.75%. This is how you can convert the ratio into the percentage. आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, और परसेंटेज को भी इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। Try to solve more and more question on these topic. If you are facing any difficulty in such type of question, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel of Hari Science and Maths Academy for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.